Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam from Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Once again, welcome you all in fourth lecture of course Applied Electronics. Dear student, in previous lecture we studied about transformer coupled and direct coupled amplifier. And now in this session, I am going to deliver the lecture on FET amplifier and tune amplifier. So let's start with some learning outcome of today's session. These are some learning outcomes. Means after completing the today's session, you all are able to explain working principle of common source FET amplifier, right application of FET amplifier, define tune circuit and state its role, draw the circuit of single tune amplifier and explain, and last, write advantage, disadvantage and application of single tune amplifier. तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक जो है FET amplifier. Here it is the circuit diagram of common source FET amplifier. As you know, transistor has two main types. Very first one is BJT मतलब bipolar junction transistor and FET मतलब field effect transistor. BJT ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर सर्किट इसके पहले हमने देखे हैं, बट हियर आई यूज FET transistor, that is field effect transistor. Field effect transistor also has three terminal, that is gate, source and drain. जैसे BJT में तीन टर्मिनल होते हैं लाइक एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, वैसे FET को भी तीन टर्मिनल होते हैं मतलब गेट, सोर्स एंड ड्रेन. हियर gate is input terminal and drain is output terminal. गेट को हम इनपुट सप्लाई देते हैं. देखिए यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल दिए हैं जो साइनोसाइडल फॉर्म में है. वो इनपुट सिग्नल हम कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू गेट को दिए हैं और ड्रेन टर्मिनल से हमने यहाँ से आउटपुट लिया है. इनपुट और आउटपुट इसमें हमेशा FET एम्पलीफायर में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होती है. As you know, in BJT amplifier, we are taking emitter as a common terminal, but in FET amplifier, we can take source as a common terminal. देखिए यहाँ पे ये जो सोर्स टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, जो ये इनपुट जंक्शन में भी और ये आउटपुट जंक्शन में भी कॉमन है. इन BJT एम्पलीफायर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन हाई होता है. सिमिलरली इन FET एम्पलीफायर कॉमन सोर्स में भी वोल्टेज गेन हाई होता है. दिस VGS means it is a voltage present between gate terminal and source terminal. That's why it is named as a VGS. V for voltage, G for gate and S for drain. Similarly, this voltage is VDS, means voltage present between drain and source. This is the VDD supply which is provided to the to bias the transistor in saturation region. Don't forget, in BJT we stable its a Q point in active region, but here in FET amplifier we stable its Q point means operating point in saturation region. FET एम्पलीफायर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है
वो हम सैचुरेशन रीजन में स्टेबल करते हैं। See, this is a very important point for FET amplifier. Small signal amplifier can also be made using field effect transistor. स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर यानी जिसको अपन बोलते हैं लो पावर एम्पलीफायर, वो यूजिंग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी अपन बना सकते हैं। बीजेटी एज अ एम्पलीफायर अपन इसके पहले यूज किया है, बट यहाँ अपन यूज कर रहे हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फॉर द एम्पलीफायर। It has high impedance as compared to BJT transistor। मतलब as compared to BJT transistor, FET ट्रांजिस्टर का इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। नेक्स्ट, द एम्पलीफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन चैनल JFET। FET एम्पलीफायर सर्किट इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है, वो हमने एन चैनल JFET से बनाया है। जैसे बीजेटी ट्रांजिस्टर के दो मेन टाइप्स होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। सिमिलरली जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मतलब ही FET, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। इसके प्रीवियस डायग्राम में हमने एन चैनल JFET यूज किया है। Here, FET is operate in saturation region for amplifier, which is equivalent to active region of BJT. As we previously discussed, FET अगर अपने को एम्पलीफायर करके यूज करना है तो उसका जो Q पॉइंट है वो सैचुरेशन रीजन में स्टेबल होना जरूरी है। बीजेटी एम्पलीफायर में उसका जो Q पॉइंट है वो होता है एक्टिव रीजन में। कहाँ पे होगा वो? एक्टिव रीजन में। बट FET एम्पलीफायर में उसका Q पॉइंट कहाँ पे होता है? सैचुरेशन रीजन में। Efficiency of amplifier can be improved by resistor RS. This RS means it is a source resistance. By adjusting this resistor, we can improve the efficiency of FET amplifier. प्रॉपर एडजस्टमेंट अगर अपन सोर्स रेजिस्टेंस के करेंगे तो उससे अपने FET एम्पलीफायर की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। This is very important point. Common source FET amplifier is 180 degree out of phase with input. ये अपन ने सिंगल स्टेज C एम्पलीफायर में भी देखा था। 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ पे भी ऑकर्ड होती है। मतलब जिस प्रकार से हम इनपुट देंगे उसके 180 डिग्री फेज शिफ्ट अपने को आउटपुट में FET एम्पलीफायर में भी मिलती है। Common source FET amplifier has high voltage gain. Common source FET amplifier मतलब सोर्स टर्मिनल अपन क्या लेते हैं? इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन को कांस्टेंट लेते हैं, इसलिए इसका वोल्टेज गेन क्या होता है? हाई। बीजेटी एम्पलीफायर में भी अपन ने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया था, बिकॉज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी वोल्टेज गेन हाई होता है। सिमिलरली कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन जो FET एम्पलीफायर के लिए अपन यूज करते हैं उसमें भी वोल्टेज गेन क्या रहता है? हाई। The next important point is application of FET amplifier. FET amplifier अपन किस जगह पे यूज कर सकते हैं वो एप्लीकेशन अपने को देखना है अभी। द वेरी फर्स्ट वन इज एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर। मतलब अपन FET एम्पलीफायर को वोल्टेज एम्पलीफायर यानी वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन द PA। PA मीन्स इट इज अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम। अपन इसको पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी माइक एंड स्पीकर पब्लिक को एड्रेस करने के लिए जो भी सिस्टम अपन यूज करते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इन रेडियो एंड TV एम्पलीफायर सर्किट,
FET एम्पलीफायर नो डाउट कि अपने को BJT एम्पलीफायर से ज़्यादा एक्यूरेट आउटपुट दे सकता है या फिर उससे ज़्यादा आउटपुट अपने को देगा। इसके लिए अपन इसको रेडियो एप्लीकेशन के लिए एंड टीवी एम्पलीफायर सर्किट में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। Our next important topic is tune amplifier. This tune amplifier is a special type of amplifier जो आप सभी लोगों ने FM रेडियो रिसीवर या टीवी रिसीवर में इसका यूज किया है। So before going into detail, we just know the what do you mean by tune circuit, यानी tune circuit क्या काम करता है। The very first one is tune amplifier is an amplifier which uses a tune circuit as a load. ट्यून एम्पलीफायर सर्किट में हम लोग ट्यून सर्किट का यूज करने वाले हैं एज अ लोड। मतलब इसके पहले सभी एम्पलीफायर में अपन ने लोड रेजिस्टेंस का यूज किया था फॉर टेकिंग अ आउटपुट अक्रॉस इट, बट यहाँ पे अपने को यूज करना है ट्यून सर्किट एज अ लोड। Tune circuit is basically a series or parallel RLC circuit. Now RLC circuit ये तीनों कंपोनेंट से अपना ट्यून सर्किट बनने वाला है। R मीन्स रजिस्टर, L मीन्स इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, और ये तीनों कंपोनेंट आइदर पैरेलल में होंगे या फिर सीरीज में कनेक्ट होंगे। अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो अपन उसको बोलेंगे सीरीज ट्यून सर्किट, अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो अपन उसको बोलेंगे पैरेलल ट्यून सर्किट। नाउ इन प्लेस ऑफ लोड रेजिस्टेंस मतलब RL, अ ट्यून सर्किट इज यूज। अपने को लोड रेजिस्टेंस के जगह पे अभी क्या यूज करना है, ट्यून सर्किट। Now we just take look out into the role of tune circuit, यानी ट्यून सर्किट का क्या काम है एम्पलीफायर सर्किट में। Very first one is select desired signal and reject other signal। मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहेंगे उसमें से जो अपने को सिग्नल चाहिए वो सिग्नल को सिलेक्ट करना और बाकी सभी सिग्नल को रिजेक्ट करना। इसका मैं आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। इफ यू वांट टू लिसन ओनली रेडियो मिर्ची, ओके, आप सभी लोगों ने FM रेडियो का यूज किया है, आप सुनते भी हो उसके ऊपर म्यूजिक, तो आप सभी को चाहिए सिर्फ रेडियो मिर्ची ये स्टेशन ट्यून होना चाहिए। बट अदर जो स्टेशन है वो आपने क्या किया है, रिजेक्ट किया है। तो 98.3 ये जो रेडियो मिर्ची स्टेशन आता है इतनी ही फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और बाकी सभी फ्रीक्वेंसी क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट और रिजेक्ट करने का काम कौन करता है, ट्यून सर्किट। डिसाइड बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, यानी अपना ट्यून सर्किट बैंडविड्थ भी डिसाइड करेगा। डिसाइड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज अ FR, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी सिलेक्ट की गई हुई फ्रीक्वेंसी बाय द ट्यून सर्किट। जो भी फ्रीक्वेंसी अपन सिलेक्ट करेंगे मतलब ट्यून सर्किट सिलेक्ट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसका एग्जांपल पहली पॉइंट में मैंने दिया है कि आपको अगर रेडियो मिर्ची सुनना है वही फ्रीक्वेंसी अगर आपको सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स इट इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और बाकी सभी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे अपन, रिजेक्ट करेंगे। Here these are some pictures of tune circuit. Here this one is a parallel tune circuit
and this one is series tune circuit. Here inductor means L, resistor means R, and C means capacitor. These three components are connected in series. That's why it is called as a series tune circuit. This is variable capacitor and this one is inductor. These two components are connected in parallel. That's why it is called as a parallel tune circuit. These tune circuits are used instead of load resistance for making the tune amplifier. Now we are going to study about single stage tune amplifier. This circuit shows the circuit of single stage amplifier. Here we use only one stage of tune circuit. In single stage tune amplifier, we are also use here a BJT as a transistor. See, this one is bipolar junction transistor. This terminal is emitter, this terminal is base, and this terminal is collector. As we already discussed, we place this single tune circuit instead of load resistance. See, this is the collector terminal और collector terminal पे ही अपन ने tune circuit का use किया है. This plus VCC means it is a DC power supply used for to bias this transistor in active region. यहाँ हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज किया है, इसलिए इसका ऑपरेटिंग पॉइंट ये एक्टिव रीजन में मेंटेन होना जरूरी है फॉर द एम्पलीफिकेशन पर्पस. R1, R2 and RE is used for voltage divider bias to maintain the operating point of this transistor in active region. This Cin means it is an input capacitor which couples the input signal from the source, which allows only AC signal and provide to the base terminal of transistor. This signal is RF signal, means it is a radio frequency signal. After amplification through this transistor, we are getting the output across this single tune circuit. These are some important points related to the single tune amplifier. The very first one is single tune circuit connected as a load in the collector circuit of the transistor. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने सिंगल ट्यून एम्पलीफायर यानी सिंगल ट्यून सर्किट ये हमने लोड रेजिस्टेंस की जगह पे कनेक्ट किया है. हमने ट्रांजिस्टर बीजेटी यूज किया है और बीजेटी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पे हमने सिंगल ट्यून सर्किट कनेक्ट किया है. Resonant frequency is adjusted by the capacitor. Resonant frequency means जो फ्रीक्वेंसी अपने को सिलेक्ट करना है इनपुट से उस फ्रीक्वेंसी को अपन बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होंगी बाय द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्यून सर्किट. और ट्यून सर्किट में जो कैपेसिटर है उसको अगर अपन अच्छी तरीके से एडजस्ट करते हैं तो उसकी वजह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्रॉपर सिलेक्ट होगी. Resistor R1, R2 and RE used voltage divider bias and maintain the transistor in active region. R1, R2 and RE ये तीनों रेजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड फॉलो करेंगे और उसकी वजह से ट्रांजिस्टर का Q पॉइंट एक्टिव रीजन में मेंटेन रहेगा. A radio frequency RF signal is applied at the input of the amplifier. रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ये अपन इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं ट्यून एम्पलीफायर के और वही सिग्नल बाद में ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा और ट्यून सर्किट प्रॉपर फ्रीक्वेंसी इनपुट से सिलेक्ट करेंगे. उसी फ्रीक्वेंसी को अपन बोलेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. Resonant frequency is adjusted to the frequency of
RF सिग्नल। जो भी फ्रीक्वेंसी अपने को इनपुट से सिलेक्ट करना है उस फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होंगी एज सिमिलर एज रेडियो फ्रीक्वेंसी। Next important point is tune amplifier will amplify the RF signal and the gain of resonant frequency FR is high than other frequency signal. जो भी फ्रीक्वेंसी हमें इनपुट से सिलेक्ट करना है वो फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ही गेन हमेशा हाई रहेगा देन अदर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मान लीजिए कि आपने ट्यून किया है स्टेशन रेडियो मिर्ची जिसकी फ्रीक्वेंसी है 98.3 मेगाहर्ट्ज। यही फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपने जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की है वो है 98.3 मेगाहर्ट्ज, उसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसका गेन हमेशा हाई रहेगा बिकॉज यही फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल ट्यून सर्किट सिलेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली इसका गेन क्या रहेगा? हाई, और बाकी सभी फ्रीक्वेंसी का जो गेन रहेगा वो रहेगा लो। The next important topic is frequency response of single tune amplifier. See, this is a frequency response of single tune amplifier. This graph is also plot between frequency on taking on x-axis and voltage gain taking on y-axis. Here voltage gain is represented by AV and frequency is represented by F. Here on x-axis a three frequency is showing F1, F4 and F2. This F1 means it is a low frequency, FR means it is a select frequency or desired frequency. That frequency is called as a resonant frequency, and F2 is it is a some other frequency or it may called as a high frequency. See, आपको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए या फिर आपने जो सिलेक्ट की हुई जो फ्रीक्वेंसी है जिसको अपन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं अपन FR से। इस फ्रीक्वेंसी का जो गेन है वो हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगा। सी, दिस गेन इज हाई ऑन दिस फ्रीक्वेंसी FR। बाकी जो भी अदर फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स इट इज F1 या फिर F2, इन सभी फ्रीक्वेंसी का जो वोल्टेज गेन है वो कैसा है? स्मॉल एज कंपेयर टू FR। मतलब यही सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी हमने सिलेक्ट की है वही फ्रीक्वेंसी के सिग्नल क्या होंगे? एम्पलीफायर, और इसलिए उसके जो गेन है वो भी क्या रहेगा? हाई। Here are some important points related to the frequency response. In frequency response, high voltage gain is observed at resonant frequency. प्रीवियस स्लाइड में हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा, उसमें जो रिस्पॉन्स में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो वोल्टेज गेन है वो हाई था। वोल्टेज गेन इज डिक्रीजेस एट ऑल अदर फ्रीक्वेंसी। F1 फ्रीक्वेंसी पे या फिर F2 फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज गेन कैसे था? डिक्रीज। द बैंडविड्थ ऑफ द ट्यून एम्पलीफायर इज कैलकुलेट एज। अभी ट्यून एम्पलीफायर में जो भी बैंडविड्थ कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से रहता है। इसका फॉर्मूला है BW means bandwidth equal to F2 minus F1. See, this is our generalized formula for calculation of bandwidth. F2 minus F1. F2 means it is a higher frequency and F1 is a lower frequency. And here in tune circuit, the formula for bandwidth calculation is FR upon Q. FR means it is a resonant frequency and Q means it is the quality factor of tune circuit. Where here BW is a bandwidth, FR means it is a resonant frequency and Q means it is a quality factor of tune circuit. Here are some advantage of tune amplifier. Very first one is frequency response is sharp, means more selective. आप सभी ने देखा कि उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शार्प होता है एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट इम्पीडेंस कैन मैच विथ लोड इम्पीडेंस।
यानी जो भी आउटपुट इम्पीडेंस रहेंगे कलेक्टर टर्मिनल से अपन आउटपुट ले रहे ट्रांजिस्टर के, उसका इम्पीडेंस और लोड इम्पीडेंस मतलब सिंगल ट्यून सर्किट का इम्पीडेंस मैच होता है। बैंडविड्थ इज स्मॉल, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शार्प होने के कारण इसकी बैंडविड्थ कैसी रहेंगी, स्मॉल। कोर लॉसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अपने इंक्रीज की वैसे वैसे इसमें कोर लॉसेस आते हैं, बिकॉज ट्यून सर्किट में हमने इंडक्टर यूज किया है इसलिए। Here are the application of tune amplifier used in TRF receiver. TRF means it is a tune radio frequency receiver. ये ज़्यादातर अपन यूज करते हैं रेडियो में। इन वायरलेस कम्युनिकेशन रिसीवर अल्सो, जहाँ पे भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करते हैं उसमें ट्यून एम्पलीफायर now are able to explain working principle of common source FET amplifier, right application of FET amplifier, define tune circuit and state its role, draw the circuit of single tune amplifier and explain, write advantage, disadvantage and application of single tune amplifier. Thank you so much for listening me carefully. In next lecture, we will discuss about double tune and stager tune amplifier.